وہ اسلامی تاریخ کا عجیب و غریب زمانہ تھا۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے مقدس سروں سے دستار حکومت اتر چکی تھی۔ بغداد ایک میوزیم کی طرح زندہ تھا، جس کے در و دیوار بنو عباس کی عظمت رفتہ کے مرثیے پڑھ رہے تھے، اور عالم اسلام عقیدت سے سر جھکائے سن رہا تھا۔ قاہرہ تخت دمشق کا ایک پایا تھا۔ غرناطہ اور قرطبہ اس تلوار کی طرح لہرا رہے تھے جس کے قبضے پر جواہرات جڑے ہوں لیکن جوہر مر گئے ہوں۔ سمرقند کے بازوؤں میں وہ طاقت نہ تھی جو تاریخ عالم کا رخ موڑ دیا کرتی ہے۔ دہلی مرکز سے دور اور طوفان سے بے نیاز خلجیوں کے تاج کے لیے موتی فراہم کر رہا تھا، اور عالم اسلام کا سب سے بڑا اور روئے زمین کا سب سے مغرور شہر دمشق ایوبی پرچم کی چھاؤں میں ایک فاتح کی طرح کھڑا ہوا ملت بیضا کے خزانوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ مسلمان نان جویں اور بازو حیدر کا تعلق فراموش کر چکے تھے۔ عبد الملک اور ہارون رشید کے سنہرے دن بیت چکے تھے، لیکن ایک ایک زبان کو ان کی کہانیاں یاد تھیں۔ ایک ایک آنکھ میں وہ مناظر آباد تھے جن میں دنیا کے مقہور بادشاہوں کو بیڑیاں پہنائی گئی تھیں۔ پھر مغرب کا صلیبی جوالا مکھی فلسطین کی شہر پناہ سے اتر کر بلاد اسلامیہ کو خاک و خون میں نہلانا پڑتا کہ صلاح الدین ایک پشتیبان کی طرح کھڑا ہوا، غرور لا کر ایک بار پھر مسلمانوں کے اماموں میں ٹانگ دیا۔ اس طرح وہ عشرت گاہیں محفوظ ہو گئیں جن کو نصف صدی بعد چنگیزی طوفان کو خس و خاشاک برنا مقدر ہو چکا تھا۔ دنیا کے عیش جن درختوں میں پھلتے تھے وہ عالم اسلام کے چپے چپے پر سرسبز تھے۔ دمشق کی پتھریلی گلیوں میں مخملی کانٹھیوں اور روپلی رکابوں سے آراستہ گھوڑوں پر سوار مسلمان گزر رہے تھے۔ ان پر اعتماد آنکھوں، روشن پیشانیوں اور شادمان چہروں پر زندگی سے آسودہ طمانیت برس رہی تھی۔ بھاری اماموں پر عقاب کے پروں اور موتیوں کی کلغیوں کی روشنی تھی۔ کفتانوں کے دامنوں، آستینوں اور شمسوں پر سونے کے تاروں کی زرد کاریاں تھیں۔ نفاست سے تراشی ہوئی داڑیاں، بے نظیر تراشوں کی قبائیں، جواہر سے گوندے ہوئے قبضوں کی تیغیں اور خنجر، اور نیچے موج در موج رواں تھی۔ سیدھے ہوئے باز، عقاب اور شکرے ان کے ہاتھوں پر زیوروں کی طرح سجے رہتے۔ شکاری چیتے اور کتے بے زبان غلاموں کی طرح ان کی سواری کے پیچھے دوڑا کرتے۔ چھتے دار بازاروں میں اور ہندوستان، افریقہ اور یورپ کی مصنوعات بھرے رہتے۔ زہرا و ناہید کو شرمانے والی ہر نسل اور ہر رنگ کی کنیزوں کا ہجوم کھڑا رہتا۔ محلوں کے روکاروں اور مکانوں کی ڈیوڑیوں پر غلاموں اور گھوڑوں کے گلے چیختے اور ہنہناتے تھے۔ دروازوں پر ملک کی صنعت کے نمائندہ پرے بڑی تمکن کے ساتھ کھڑے رہتے۔ بیش قیمت قالین اپنے آقاؤں کے مبارک قدموں کے لمس کی دعا مانگا کرتے۔ روپہلے حاشیوں اور سنہرے فانوسوں کے زیور پہنے لمبی چوڑی چھتیں اپنا سرد و گرم سایہ لیے ان تجاہل پیشہ کمینوں کی راہ تکا کرتیں جو گھوڑوں کی رانوں میں دبائے، کھنچی ہوئی کمانیوں میں تیر جوڑے، گھنے کالے جنگلوں میں غور گھر کی جستجو کیا کرتے۔ بے شبہ ہتھیاروں اور بیش قیمت نعمتوں سے بھرے ہوئے طاقوں سے لدی پھندی دیواریں ان کے انتظار میں کھڑی سوکھا کرتیں جو پائیں باغ کی دبلی پتلی نہروں اور موٹے تازے حوضوں کے کنارے، سرخ گلاب کی کنج کے آس پاس چاند سورج جیسی عورتوں کے پہلو میں لیے ٹہلا کرتے۔ لہلہاتی گھاٹیوں میں شاداب قصبے تھے جن کے سامنے کھجوروں، سیبوں، انگوروں، خوبانیوں، شہتوتوں اور ناشپتیوں کا دسترخوان بچھا رہتا۔ چمکیلے ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشموں کے کٹورے رکھے رہتے۔ مکانوں کی پگڑیوں پر باورچی خانے کے دھوئیں کے سرمئی ترے لرزا کرتے۔ کچے پکے مکانوں کی سنگین چوبیں اور کھجور کی چھال کی چھتوں کے نیچے لمبے چوڑے دالانوں میں سود کاتتی، قالین بنتی، چمڑا رنگتی اور مٹی کے برتن بناتی کسان بوڑھیاں کھانتی رہتیں، کھنکارتی رہتیں، شریر پوتوں نواسوں کو چمکارتی پھسلاتی رہتیں۔ بوڑھے لوٹی ہوئی مغربی قبائیں پہنے باغوں اور کھیتوں کی فصلوں کو آگتے رہتے، دردلے جوڑوں اور تمہوں کی طرح لگے ہوئے زخموں اور داغوں کو سہلاتے رہتے، اور ذہن میں کلبلاتے ہوئے گناہوں کو جہاد کی یلغاروں کا نشہ پلا کر تھپکیاں دیتے رہتے، اور موجودہ جنت کی حوروں سے اٹکھیلیوں کے خواب دکھا کرتے۔ عورتیں خیالی آنکھوں سے دمشق کے بازاروں میں کوڑیوں کے مول بکتی ہوئی مصنوعات و زیورات کو پسند کیا کرتیں، مٹی کے بیضابی گھڑوں میں چشموں کا پانی بھرا کرتیں، اور خوشبودار راستوں پر چلتی ہوئی ان دنوں کو یاد کیا کرتیں جب ان کے شوہر ان کو گھورنے کے لیے ان جھاڑیوں میں منڈلایا کرتے تھے جو آج مال غنیمت میں اٹھی ہوئی مغربی کنیزوں کی لذت میں کھوئے رہتے ہیں۔ مرد ڈھیلے ڈھالے کفتان پہنے، آبدار ہتھیار باندھے، طرحدار گھوڑوں پر سوار، ان عورتوں کی تیز خوشبو یاد کیا کرتے جو انہیں لوٹ میں ملی تھی اور جنہیں بیچ کر انہوں نے گھوڑیاں خریدی تھیں اور کھیت بوئے تھے۔
गुरूब होती हुई सर्दियों का शामी आफताब जब एक नेज़ा हो लिया, तब कब्बा शाही की निचली मंजिल की दरमियानी महराब के हश्त पहल ज़रकार सुतून से लगे खड़े हुए वज़ीर अबू बकर के पास अमीर सामान पहुंचा और जुलूस के तैयार होने की खबर दी। वज़ीर ने मुरस्सा कमरबंद को कस लिया, दोनों हाथों से अमामे का जाविया दुरुस्त किया। जीने पर खड़े हुए कराकोश के मुहाफिज दस्ते ने अपने जगमगाते हथियारों को समेटकर वज़ीर के लिए रास्ता बनाया और वो सीढ़ियां चढ़ने लगे। तुर्जुमान सरदार ने भारी पर्दा हटा दिया। सुल्तान आज़म तख्त की तकिए से पुष्ट लगाए, दोनों हाथों से सर दबाए नीम दराज थे। वज़ीर ने पाइंती खड़े होकर सीने पर हाथ बांध लिए। सुल्तान ने अबरू पेशानी पर चढ़ा लिए और सोचती निगाह से सवाल किया। वज़ीर ने सर झुकाया, फिर तन कर खड़े होकर गोशगुजार किया। हुक्म था कि हाजियों के काफले की पेशवाई सुल्तान उस सलातीन बनफ्से नफीस फरमाएंगे, इसलिए काफले को बाबू शर्क पर रोक दिया गया है और फरमाने सानी का इंतजार है। सुल्तान के उठते ही वज़ीर उल्टे कदमों वापस चला गया। अमीर बयूतात ने खलवत शाही के मगरबी दरवाजे का पर्दा हटा दिया। सुल्तान तख्त के पास ही खड़े रहे, फिर खुद कलामी के से अंदाज में गोया हुए। बूढ़े और बीमार जिस्म को बादशाही तकल्लुफात ज़ेब नहीं देते, लाओ पहना दो। अमीर ने जर्द रेशम का जुब्बा पहना दिया। एक गुलाम ने मरस्सा दस्ताने पेश किए जो ना मकबूल हुए। कमर में अमीर ने वो कमरबंद बांध दिया जो पुखराज के काम से जर्द था। पूरे एहतराम के साथ तलवार कमर में लगा दी, जिसे जुल्फ़कार सानी का जायज़ खिताब दिया गया था। अभी गुलामों की उंगलियां पे रहन पर नजर रही थीं कि उनके कदम दरवाजे की तरफ उठ गए। जीने पर खड़े हुए चाउश ने उमरा को इत्तिला दी। अंदरूनी इमारत से जबूतरे की सीढ़ियों तक शहजादों, वजीरों, सरदारों का मुअद्दब हुजूम खड़ा था। सुल्तान आदाब शाही की बजा आवरी से बेनियाज जबूतरे की आखिरी सीढ़ी तक पहुंच गए। सामने ताऊस ज़र्री नाम का जर्द खालस अरबी घोड़ा कर्द खास बरादरों और तुर्कमान तबरदारों के हल्के में खड़ा था। रिकाब में पाए मुबारक रखते ही दर बाब दाखिला से तबल बजने की आवाज़ आने लगी। मरकब शाही के आगे खड़े हुए 4 हसीन, तंदुरुस्त और नौखिर गुलाम परिंदों की तरह उड़कर अपने सफ़ेद घोड़ों पर सवार हो गए। उनकी आस्तीनें और दामन और शमसे ज़रकार थे। पगड़ियाँ जर्द अतलस की थीं। हथियार और घोड़ों के साज मुरस्सा थे। उनके दाहिने हाथ में कफिया यानी रुमाल थे। उनके सवार होते ही शहजादा तुगरुल ने सुल्तान पर छत्र शाही का साया कर दिया। ताऊस ज़र्री जवाहिर निगार 4 जामा पहने, आबदार मोतियों की कलगी लगाए खुरूर से पांव पटक रहा था और सुल्तान आंखों के गोशों से अराकीन सल्तनत और उमराए दौलत को मुलाहिदा फरमा रहे थे। ममालिक अफ्रीका का नौजवान अमीर गजनफर, जिसने जिहाद में बड़े बड़े मार्के अंजाम दिए थे, इस खिदमत ख़ास पर मुतय्यन था कि मरकब शहनशाही का 4 जामा पकड़ कर चले। वो संगे स्याह के देव की तरह ताऊस ज़की के साथ साथ घूम रहा था। मिजाजदान अमीर ने निगाह सुल्तानी पढ़ ली और गुजारिश की, मिस्र और कुर्दिस्तान से आए हुए लश्कर मुजाफात में मुकीम हैं। नायब सल्तनत और सिपा सालार दौलत मुलाहते के लिए तशरीफ़ ले गए हैं। इस पहाड़ की तरह भारी भरकम अमीर के अलगोज़े किसी निसाई शीरीन आवाज़ ने सुल्तान को हमेशा महसूस किया था। उस वक्त भी उनके संजीदा लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमदार हुई और उन्होंने आस्तीन से रुमाल खींच लिया। ये इशारा था जुलूस की रवानगी का। चशम ज़दन में राकिब व मरकब एक हो गए। अमीर जुलूस वज़ीर अबू बकर ने हाथ का इशारा किया। बाबे दाखिला पर खड़ी हुई ऊँटों की कतार तबल बजाती हुई चली और हिजाज और मिस्र के अमीर अपने अपने निशान उड़ाते शमशीरजादों को रिकाब में लिए चल रहे थे। उनके बाद एक शख्स नफीरी बजाता हुआ बढ़ रहा था। सफ़ेद घोड़ों पर सवार 4 गुलाम कदम से कदम मिलाए आगे बढ़ रहे थे। मरकब शाही के पीछे तोरुल के आहनी हाथ में वो भारी छतरा था जिस पर बैठा हुआ सोने का औकाब उड़ाने के लिए पुरतोल रहा था। जब सवारी बाबे दाखिला से गुजर गई, तब सहन में भरे हुए सवार शहजादों और अमीरों और वजीरों के साथ जुलूस के पीछे हो लिए। अब दमिश्क के कदीम महल्लात के नकीले मीनारों के छतरियां और मखरूती गुंबदों के कुलस नजर आने लगे थे। मालूम होता था जैसे ये शाहाना इमारतें पूरे तहम्मुल के साथ पेशवाई के लिए आगे बढ़ रही हों।
قطر سلطانی کے میدانوں اور باغات کے حدود ختم ہوتے ہی جلوس انسانوں کے لہریں لیتے ہوئے دریا میں داخل ہو گیا۔ مغرور اور دولت مند دمشق کی خوشحال آبادی محافظ اسلام کے مقدس دیدار کے لیے صبح سے شاہراہ عام کے دونوں طرف ابل پڑی تھی۔ سرخ پتھر کی مسطح سڑک کے دونوں طرف زمین کا ایک ایک چپا انسانوں سے پٹا پڑا تھا۔ دکانوں کے سنگین دالان، چوبیوں اور چرمین سیابان، فلک بوز ڈوڑیوں کے تاریک حجرے، نیم تاریک محرابیں اور محلوں اور مسجدوں کی سیڑھیاں بوڑھوں، جوانوں اور بچوں سے چھلک رہی تھیں۔ بوڑھے غازی اور جوان شاعر و موسیقار اپنے اپنے مداحوں کی ٹولیوں میں کھڑے پرسوز آواز اور پرجوش الفاظ میں جتین اور فلسطین کی لڑائی کے قصیدے سنا رہے تھے اور گا رہے تھے۔ جب مرکب شاہی ان کے قلیب سے گزرتا تو وہ خود فراموش آواز میں سلطان کی عمر و اقبال کو دعائیں دیتے، نعرے اور رکاب بوسی کا شرف پانے کے لیے یلہار کر دیتے اور مستعد سوار اپنے گھوڑے بیچ میں ڈال کر انہیں دور رکھنے کی کوشش کرتے۔ اور یہ بھی ہوتا کہ کوئی بوڑھا مجاہد یا نو عمر لڑکا اپنی عمر کا فائدہ اٹھا کر محافظ دستے کے حلقے کو توڑ کر گھس آتا اور امیر افریقہ غضنفر کی سرخ ہوشیار مؤدب آنکھوں کے سامنے تاؤ سے زرے کی رکاب پر سر رکھ دیتا اور پاپوش سلطانی کو اپنے آنسوؤں سے بھگو دیتا، اور جب غلام چاہتے کہ ان کی کمر میں ڈال کر اٹھا لیں تو ایک چینے جبین انہیں اس حرکت ناشائستہ سے منع کر دیتی، اور جب جلوس گزر جاتا تو پتہ چلتا کہ کتنے ہی آدمی دم گھٹنے سے بے ہوش ہو گئے اور کتنے ہی گھوڑوں سے کچلے گئے اور کتنے ہی رکاب کے فتے ان پر گلاب چھڑکا جاتا، مخلخہ سنگھایا جاتا اور دمشق کے کئی درجن شفاخانوں کے سینکڑوں طبیب ان کے علاج کے لیے دوڑ پڑتے۔ بازار زردوزی کے چھتے سے نکلے ہی بوندی پڑنے لگی۔ وہ بارش ہونے لگی جو فصلوں کی بالیوں کو مضبوط کرتی ہے اور دانے کو دانا کرتی ہے۔ آبادی اس بارش رحمت کو دیدار شاہی کا فال سمجھ کر دعائیں دینے لگی۔ تلواروں اور تیروں کی یورش میں ثابت قدم رہنے والی زندہ قوم اسی طرح کھڑی رہی۔ سفید اور سرخ اور زرد پتھر کی عمارتوں کے سنگین چھجوں اور کامدار اور جالیدار شہنشینوں کی چلمنوں کے پیچھے کھڑی ہوئی شعلہ بدن عورتوں اور گل پیرہن بچوں کے ہاتھوں سے پھول برستے رہے۔ تغرل نے چھتر شاہی کو نیچا کر کے جسم سلطانی کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ امیر جلوس وزیر ابو بکر نے گھوڑے بڑھانے کی اجازت مانگی جو نصیب نہ ہو سکی۔ حاجیوں کے قافلے تک پہنچتے پہنچتے سلطانی کفتان کے دامنوں سے بوندیں ٹپکنے لگی۔ بھیگے ہوئے لباس پر طوفانی ہواؤں کے جھکڑ و تکلیف دہ ہو گئے۔ جب ایک آدمی حاجی کو مسافر کی سعادت بخش چکے اور سارے جسم میں تھرتھری رینگ گئی تو اپنے آپ پر قابو فرمایا اور داہنی رکاب کے پاس کھڑے ہوئے وزیر کی طرف خفیف سا جھک گئے۔ وزیر نے اپنا کان پیش کر دیا، مقررہ راستے کو نظر انداز کر کے جلد از جلد قصر پہنچنے کی کوشش کرو۔ وزیر نے پشت پر کھڑے ہوئے غلاموں کے کان میں کچھ کہا اور تبل کو بھجوا دیا۔ شاہراہوں میں کھڑی ہوئی آبادی جلوس کا انتظار کرتی رہی اور جلوس شہر پناہ کے نیچے اڑتا ہوا قصر کے بابت داخلہ میں داخل ہو گیا۔ خلوت شاہی کے دروازوں اور دریچوں پر پردے ڈال دیے دہکتے ہوئے کوئلوں کی سمی انگیٹھیاں لگا دی گئیں اور سلطان نے سمور کے کفتان پر بخارا کے پشمینے کی چادر اوڑھ لی۔ ملک الاطباء حاضر ہوئے، نبض چھوئی انگلیاں جل گئیں مگر اپنے جذبات پر قابو اور چہرے پر طمانینت کی سیکل کیے نبض دیکھتے رہے۔ غلاموں کے ہاتھوں پر رکھی ہوئی دواؤں کی کشتیوں سے ایک خوراک بتائی اور اپنے اپنے ہاتھ سے شیشہ پیش کیا۔ سلطان دو پیتے رہے اور وہ خدائے بزرگ و برتر سے صحت کی دعا مانگتے رہے۔ تیمم کیا، مغرب کی نماز بیٹھے بیٹھے ادا کی، لیکن چہرے سے کسی تشویش یا نقاہت کا اظہار نہ ہونے دیا۔ جن کے ہاتھوں میں قلمدان جہاد رہتا تھا حسب معمول پیشی کے لیے حاضر ہوئے۔ طبیب شاہی نے چاہا کہ ان کو اشارے کنارے سے حالت سلطانی کا علم کرا دیا جائے، لیکن رازداری کے خوف سے خاموش رہے۔ نگاہ ملتے ہی وزیر نے استدعا کی۔ والیان حکومت کے نام جاری کیے گئے فرامین مہر شاہی کے ثبت ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ سلطان اعظم کے ارشاد عالی سے قبل ہی طبیب خاص نے دھیمی آواز اور مضبوط لہجے میں کہا، طبیب کی حیثیت سے میری وزیر جہاد سے گزارش ہے کہ اس وقت سلطان المسلمین کو آرام کی شدید ضرورت ہے۔ الہا کاری کے ابرو پیشانی پر حملے اور آنکھیں پھیل گئیں۔ صلیبیوں سے جہاد کے منصوبے میں بیت المقدس کے سامنے فیصلہ کن لڑائی شامل تھی، جسے صلیبیوں کی قبل از وقت اور نامراد واپسی نے انجام پذیر نہ ہونے دیا۔ یوں تو منصوبے کی ایک ایک شکہ سلطان بنفیس علم رکھتے تھے جو عظیم الشان کام درپیش تھا۔ اس کی کامیاب بجاوری کے لیے مختلف مہمات مختلف ہاتھوں میں سونپ دی گئی تھیں۔ نائب السلطنت ملک العادل سامان جنگ کے شعبے میں محتمم اعلیٰ تھے اور وزیر ابو بکر رسد کے ذمہ دار۔ صقلیہ میں متعین اسلامی جاسوسوں کی خبریں وصول کرتے ہی عادل نے اپنا قیام کو طول دے کر سوچنا شروع کر دیا تھا۔ اسلامی سپاہ کی نفسیات کے نباز جنرل نے اپنی آنکھوں سے صلیبیوں کی بدحواس پسپائی دیکھی تھی۔ سلطان السلاطین کے بھائی دست راست اور اپنے عہد کے سب سے بڑے متبر کو محافظ اسلام کا جو اعتبار حاصل تھا اس کی یاد سے حافظہ لبریز تھا۔ انہوں نے نائب السلطنت کی حیثیت سے سپہ سالار تقی الدین اور وزیر جہاد ابو بکر کا اعتماد حاصل کیا اور اپنا خفیہ منصوبہ کھول کر رکھ دیا۔
जब गर्मजोशी के साथ ताकत हासिल कर ली तब खुश्की के रास्ते से आए हुए जर्मन सलीबियों के आसान रास्ते का इंतखाब किया। बैतुल मक़दस से दमिश्क और ताहिरा तक फैले हुए तमाम किलों, मोर्चों, शहरों और बस्तियों में बेहिसाब आलाते हर्ब और सामान रसद भरा पड़ा था। 1 लाख डंगी घोड़ा और 50,000 खच्चर तैयार खड़ा था। कासिदों के जरिए किलादारों और वालियों और आमिलों को अहकाम भेजे गए कि वो दिन में क़याम करते और रात में तूफ़ानी रफ्तार से सफ़र करते हुए चलें और एक एक कमान, एक एक तीर और एक एक मंजनीक को रकाब से अंताकिया तक इंतज़ार करते हुए किलों में पहुंचा दें। पूरा रसद खाना और तोशा खाना जंगी घोड़ों और खच्चरों और ऊँटों पर लाद कर रवाना कर दें। अभी इन अहकामात की तामील हो रही थी कि कहतान ने परवाना राहदारी हासिल करने के लिए मुलाकात की और सफारतकारा राज उनके कान में डाल दिया। कहतान की रवानगी के साथ ही इंतजामात की रफ्तार और तेज कर दी गई। फिर सूडान, मिस्र, हिजाज, यमन और कुर्दिस्तान की मुस्तकिल तनख्वाहदार फौजों के बड़े हिस्से को दारुल सुल्तनत में हासिल होने का फरमान लिखा और खुद दमिश्क के लिए सवार हो गए। तकीउद्दीन पहले ही अपने खास रसालों के साथ जंबिश कर चुका था और रास्ते के किलों में बेकार पड़ी हुई सिपाह को समेटता हुआ बाबे हुकूमत की तरफ बागी उठा चुका था। खुलवत शाही में काज़ियुल कुज़ात की दर्दनाक तकरीर पर सुल्तानुल मुस्लिमैन की खामोशी ने मगरबी यलगार पर शाही रज़ा का यकीन दिला दिया था। दरबार ख़ास से निकलते ही नायब सुल्तनत ने संगीन खुफिया अहकामात जारी कर दिए। एक अजीमुश्शान सल्तनत की मजबूत तरीन हुकूमत के लिए बेपनाह वसाइल हरकत में आ गए। महकमा डाक के घोड़ों और नीले कबूतरों से ज़मीन व आसमान भर गए और काफ़े बरकाफ़े अंताकिया की सरहदें चाटने लगे। देखते ही देखते दरियाए ज़रफ़िशां रोथ बोर्दा के दोनों किनारों पर ऊँटों और भेड़ों के बालों के खेमे, कलमकार नमदे की बारगाहें, हरीर व मखमल के सरापर्दे, ऊनी और रेशमी कनातें और चमड़े की छोलदारियां खड़ी हो गईं। मदवर, मुकाब और मुस्तकबिल बारगाहों पर मिस्री, सुडानी, हिजाजी, यमनी और कुर्दिस्तानी अमीरों के जर्द, सुर्ख, सब्ज, नीले और सिया फरेरों पर जरदोजी जाती निशान लहराने लगे। सिपाहियों के साथ आए हुए कोतल घोड़ों, सामान के खच्चरों और ऊँटों से सुरमई जंगलों के दरमियान बिछे हुए सब्ज पोश कते तवेले बन गए। दस्तकारों, कारीगरों और मजदूरों की बस्तियां आबाद हो गईं। तोड़कर पार कर लेने वाले छोटे छोटे जंगी जहाज़ों, मंजनीकों और दबाबों की मिस्री कारीगरों ने मरम्मत और तख्लीक शुरू कर दी। नफखा और आतशगीर मादे के ज़ख़ीरे जमा होने लगे। लूट में आए हुए जंगी सामान बाजार लग गया और हुकूमत के कमाशे मुंह मांगी कीमत पर खरीदने लगे। आर्मीनिया खुर्द में मामूर अयूबी अमरार रास्तों की हमवारी और हिफाजत और रसद फराहमी में मसरूफ़ हो गए। देखते ही देखते दरियाए ज़रफ़िशां रोथ बोर्दा के दोनों किनारों पर ऊँटों और भेड़ों के बालों के खेमे, कलमकार नमदे की बारगाहें, हरीर व मखमल के सरापर्दे, ऊनी और रेशमी कनातें और चमड़े की छोलदारियां खड़ी हो गईं। मदवर, मुकाब और मुस्तकबिल बारगाहों पर मिस्री, सुडानी, हिजाजी, यमनी और कुर्दिस्तानी अमीरों के जर्द, सुर्ख, सब्ज, नीले और सिया फरेरों पर जरदोजी जाती निशान लहराने लगे। सिपाहियों के साथ आए हुए कोतल घोड़ों, सामान के खच्चरों और ऊँटों से सुरमई जंगलों के दरमियान बिछे हुए सब्ज पोश कते तवेले बन गए। दस्तकारों, कारीगरों और मजदूरों की बस्तियां आबाद हो गईं। तोड़कर पार कर लेने वाले छोटे छोटे जंगी जहाज़ों, मंजनीकों और दबाबों की मिस्री कारीगरों ने मरम्मत और तख्लीक शुरू कर दी। नफखा और आतशगीर मादे के ज़ख़ीरे जमा होने लगे। लूट में आए हुए जंगी सामान बाजार लग गया और हुकूमत के कमाशे मुंह मांगी कीमत पर खरीदने लगे। आर्मीनिया खुर्द में मामूर अयूबी अमरार रास्तों की हमवारी और हिफाजत और रसद फराहमी में मसरूफ़ हो गए। उन्होंने हाथ से वो कलम रख दिया जिस पर सफ़ेद उकाब का पर लगा था और चेहरे पर फिक्र का साया कांपने लगा। फिर सरा पर्दाए खास का अतलसी पर्दा हिला और कसरे सुल्तानी का मोहतम आला सफ़ा सलाम करके मुअद्दब खड़ा हो गया। बैठ जाओ, नायब सुल्तनत ने हुक्म दिया और बीमार ख्यालों की दुनिया से निकल आए। मैं तखलिये में हुजूर आली से कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। जब बारगाह खाली हो गई तब सफ़ा ने ज़बान खोली। कल सुबह हाजियों के इस्तकबाल के लिए सुल्तानुस सलातीन सवार हुए। बाजार जरदूरी से निकलते ही बारिश होने लगी।
अमीर जुलूस ने चाहा कि मदरसा अय्यूबी के सामने सवारी रोक ले, लेकिन हुक्म नहीं मिला। सारा जिस्म शराबूर हो गया। वापसी पर तेज बुखार था। तहज्जुद के वक्त से गाफिल हैं, फज्र की नमाज कज़ा हो गई। फिलहाल ये राज चंद कदीम नमकखारों तक महदूद है, लेकिन इससे ज़्यादा सुनने की ताब न थी। खड़े हो गए, ताली बजाई, हाजिर होने वाले गुलाम को हुक्म दिया, सिपा सालार को तलब करो और घोड़े लगाओ। जितनी देर वो तकीउद्दीन से सरगोशियां करते रहे, उतने वक्फे में ज़ाती रसाले के सवार और घोड़े तैयार हो गए। सवार होते वक्त जानसारों ने एक ज़बान होकर सबब पूछा। पूरी तमानियत और बशाशत के साथ जवाब दिया, हुक्म सुल्तानी। जहन रास्ता भर उड़ते हुए घोड़ों की रफ्तार से तेज काम करता रहा। उन्होंने ठंडे मंझे हुए कार आजमूदा मुदब्बिर की ज़हीन आंखों से वो सब कुछ देख लिया जो पेश आ सकता था, और उसके लिए अपने को तैयार कर लिया। हमेशा की तरह बाबुद दाखिला पर घोड़े से उतर पड़े। दस्तूर के मुताबिक सुल्तानुस सलातीन के ज़ाती अलम को तलवार के कब्जे पर हाथ रखकर ताज़ीम दी। दरख्तों और फूलों और जानवरों के पास से टहलते हुए गुजरे। खिदमत गुजारों और ग़ुलामों से छोटे मोटे सवाल किए। मामूली मामूली बातों पर हुक्म अहकाम दिए और कुब्बा सुल्तानी की सीढ़ियों तक आ गए। नूरुद्दीन साहिब कीफ़ा और इमादुद्दीन अमीर मारदीन वगैरह के सलाम लिए, चेहरे पढ़े और सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। एक मनहूस और स्याहपोश खामोशी तारी थी। सारा कुब्बा शाही शहजादों, वजीरों, तबीबों और आलिमों से भरा हुआ था, लेकिन पेशानियों की शिकनों, अब्रुमों और आंखों की जुम्बिशों के सिवा जिंदगी के आसार न थे। सुल्तान ऐवान में लिपटे तख्त पर लेटे थे। मलिकुल अतिब्बा इनकी बुलंद पेशानी पर दवाओं का लीप कर रहे थे। उन्होंने शहजादा अफजल और शहजादा ज़ाहिर के सरों पर हाथ फेरा और घुटनों पर गिरकर दस्ते मुबारक को थाम लिया। तबीब खास ने इशारों ही इशारों में पूरी कैफियत बयान कर दी। फिर नाइबुस सल्तनत के हुक्म से बाबुद दाखिला का पहरा सख्त कर दिया गया। न कोई अंदर आ सकता था और न बाहर जा सकता था। 3 दिन गुजर चुके थे और सुल्तान गाफिल थे, और दमिश्क को मालूम था। बाजारों, ड्योड़ियों, हम्मामों और दीवान खानों में मुतफक्किर आवाज़ें सिर्फ एक जिक्र कर रही थीं, और सुल्तान की बीमारी का जिक्र था। उस दिन जुम्मा था और अरबाब सियासत के लिए इम्तिहान। सुल्तानुल मुस्लिमीन जामिया दमिश्क में नमाज जुम्मा अदा करते थे। हस्बे मामूल कुब्बे शाही की सीढ़ियों के नीचे ताऊ से ज़रीन लगा दिया गया था। हस्बे मामूल की निचली मंजिल में अराकीन सल्तनत और उम्राए दौलत मुरस्सा परछाइयों की तरह खामोश खड़े थे। आज़ान होते ही जीने के सीमी दरवाजे से मलिकुल आदिल और उनके पीछे शहजादा अजीज नमूदार हुए। अमीरों के वस्त में खड़े होकर आदिल ने अजीज को अपने पास बुलाया। निकलते कद, छरीरे और खुलती रंगत का सोगवार शहजादा सामने खड़ा था। मुतवरम पैपटों के नीचे आंखें गम से गीली थीं, नाक की फुनगी सुर्ख थी। कई दिन की तराश हुई स्याह, नकीली और हल्की दाढ़ी के बाल इधर उधर निकले हुए थे। आदिल ने अजीज के शानों पर अपने हाथ रख दिए और दिलगीर मगर फैसला कुन आवाज में बोले, खुदा हमारे सरों पर अबदुल आबाद सुल्तानुल मुस्लिमीन का साया कायम रखे, लेकिन अगर क़यामत सुगरा का हमारे सरों पर टूट पड़ना मुकद्दर हो चुका है तो तुम्हारे सामने खम होने वाला पहला सर मलिकुल आदिल का होगा। तुम्हारे हकूक की हिफाजत के लिए अलम होने वाली पहली तलवार मलिकुल आदिल के न्याम से निकलेगी। लेकिन मैं नाइबुस सल्तनत हूँ शहजादा बुजुर्ग। अयूबियों की अजीमुशान सल्तनत के मुस्तकबिल का फैसला औरतों की रकीकुल कल्बी जज्बातियत के हाथों में नहीं दिया जा सकता। सुल्तान न किसी का चचा होता है न भतीजा, सुल्तान सिर्फ सुल्तान होता है। जाओ, परागंदा दिल इस्लामियों की अमामत करो और सुल्तान मुअज्जम की सेहत की दुआ मांगो। उनकी आवाज़ से आंसू टपकने लगे। अपने अमामा के शमले से आंखें पोंछीं और फिर अपने हाथों से शहजादे का तरबूश उतार लिया और गुलाम के हाथों से जर्द अमामा लेकर बांध दिया। ताऊ से जरी की रिकाब में पांव रखते वक्त शहजादा कांप उठा। कसरे शाही के बागों और मैदानों से निकलते ही शामियों के गोल नजर आने लगे थे, जो वैरान आंखों से ताऊ से जरीन पर सवार अजीज को देख रहे थे और सरगोशियां कर रहे थे और आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआएं मांग रहे थे। मदरसा अयूबी के सामने ज़बरदस्त हुजूम था। ये मदरसा सुल्तान की दीनी खिदमत का आला नमूना था। यहाँ दुनिया इस्लाम के जय्यद आलिम और बेबदल फाजिल दर्स देते थे और कोने कोने से खिंच कर आए तालिब इल्म शाही खर्च पर इल्म हासिल करते थे। सुल्तान का दस्तूर था कि वो हमेशा इस मदरसे के दरवाजे पर उतरते, आलिमों और तालिब इल्मों से मुसाफा करते, उनकी ज़रूरतें सुनते और रफ़ा करते।
आज सुल्तान के घोड़े पर सुल्तान के बेटे को देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। अब जामा दमिश्क उनके सामने थी। जामा दमिश्क जिसकी तामीर के मसारिफ में मलिक शाम के 7 बरस के अखराजात के अलावा जजीरा कुब्रुस से लाए हुए सोने चांदी के 18 जहाज भी शामिल थे। उसके फर्श का काशानी काम ईरान और हिंदुस्तान और बैजंतीना के कारीगरों के काम का आला तरीन नमूना ख्याल किया जाता था। शहजादा वस्ती मेहराब से गुजरकर उस हुजरे के सामने आ गया जिसके अंदर वो घड़ी थी और जहां सुल्तानुल मुस्लिमीन वज़ू किया करते थे। शहजादे ने वहीं बैठकर वज़ू किया और उस जगह खड़ा हो गया जहां खड़े होकर सुल्तान नमाज पढ़ा करते थे। उसकी नीयत बांधते ही सारी मस्जिद में हौलनाक सन्नाटा छा गया। दूर अंदेश लोगों की दूरबीन आंखों ने मुसीबत के उठते हुए सैलाब को देख लिया और रोने लगे। और काजी उल कुज़ात ने जब खुतबे में सलाहुद्दीन का नाम लिया तो हज़ारों हाथ आसमान की तरफ उठ गए। हज़ारों ज़बानों ने सेहत की दुआ मांगी। नमाज के बाद मिंबर पर खड़े हुए इमाम ने तहलिसाने क़ज़ा के दामन फैलाकर दुआ मांगी। परवरदिगार, इस उम्मत के नेकों के नेकियों के सदक़े में सल्तनतुल मुस्लिमीन को सेहत दे। बारे इलाह, बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी के तसद्दुक़ में सुल्तान मौज़म की उम्र मुबारक में बरकत दे। रब्बुल आलमीन, ये शौकत व वसूलत जो तूने अपनी उम्मत को सुल्तान आज़म की तलवार के वास्ते से अता की है, इसके तुफ़ैल में सुल्तान आज़म पर रहम कर। ऐ गुनाहों के बख्शने वाले, हमारे जवान बेटों की उम्रें काट ले और मुहाफ़िज़ इस्लाम की ज़िंदगी में पैबंद लगा दे। उनकी आवाज़ रुंध गई। वो मिंबर पर खड़े कांपते रहे और रोते रहे। आमीन के नारे लगाता हुआ 1 लाख नमाजी फरियादें करने लगा और आहो बका के शोर से अब्दुल मलिक की तारीखी मस्जिद के दरो दीवार लरजने लगे। दूसरे दिन शाम होते होते सुल्तान ने आंखें खोली, तबस्सुम फरमाया, उठने की कोशिश की। गुलामों ने पुश्त से तकिए लगा दिए। नमाज का वक्त पूछा, तयम्मुम कराए जाने का हुक्म दिया। मगरिब की नमाज अदा की। तबीब खास ने जौ के पानी का प्याला पेश किया। खूब सैर होकर पिया, फिर इतना पसीना निकला कि लबास तब्दील करना पड़ा और इशा के वक्त सारे दमिश्क में सेहत की खबर उड़ गई। शुक्राने की नमाजों से एक सुबह जब ख़ानदान शाही की ख़वातीन चली गईं और शाही तबीब शहजादों के साथ नब्ज़ देखने हाजिर हुआ तो आदाब शाही की बजा ला के बाद तमाम दरीचे खोल दिए। बाबू दाखला पर अयादत आई हुई आबादी का हुजूम था। दरीचों का खुलना देखकर उनकी दुआओं का हजम बढ़ गया। इंतहाई नकाहत के बावजूद शोर का सबब दरियाफ्त किया। शहजादे खामोश खड़े रहे। मलकुल आदिल ने, जो चांदी के तकिएदार तपाई के मानंद एक कुर्सी पर बैठे सुल्तान का हाथ दबा रहे थे, अर्ज किया, दमिश्क के उलमा और सुलेहा अयादत सल्तानी को हाजिर हुए हैं। सुल्तान ने सीने से दाहिना हाथ उठाकर तख्त के कालीन पर डाल दिया और कमजोर निगाहों से आदिल को देखा और अल्फाज तोड़ तोड़ कर बोले, हमें नीचे ले जाओ। सुल्तान तबीब सराहने से चलकर पांती आ गए और हाथ बांधकर गुजारिश की, नीचे तशरीफ ले जाना सुल्तानुल मुस्लिमीन की सेहत के लिए मुज़र है। जवाब मिला, लेकिन इखलाक के लिए मुनासिब है। थोड़ी देर तबीब और आदिल एक दूसरे को देखते रहे। फिर एक तकिएदार ऐवान लाया गया। सुल्तान दूसरों की मदद से उस पर दराज हो गए। गुलामों ने पूरी एहतियात के साथ उसे उठा लिया। उब्बा सुल्तानी की निचली मंजिल के जनूबी दालान में दीवान लगा दिया गया। हरीरी पर्दे बांध दिए गए। संगीन कदादम कुर्सी से बाबू दाखला तक मुसल्ला सवार इस तरह खड़े हो गए कि आने वाले एक तरफ से आएं, नीचे ही से दीदार हासिल कर लें और दूसरी तरफ से चले जाएं। जब सब इंतजामात मुकम्मल हो गए, नाइब उस सल्तनत को हाथ का इशारा किया। सफ़ेद, सब्ज और धारीदार कफ्तानों, जुब्बों, अबाओं, चादरों और इमामों और इजारों का खामोश दरिया चढ़ाया। संगे स्याह के कदादम चबूतरे पर जद सुतूनों के दरमियान और मुतल्ला अरबी मेहराब के नीचे चांदी का दीवान रखा था। सुल्तान ऊंचे तकियों से पुश्त लगाए दोनों हाथ मसनद पर डाले लेटे थे। कान के पास जर्द इमामे से निकले हुए खिचड़ी बाल चमक रहे थे। नीम खौफ्ता आंखें खला में कुछ ढूंढ रही थीं। ऊंची नाक के नीचे महीन होंठ थोड़ी थोड़ी देर के बाद कांप उठते। चंपई रंगत जर्द हो गई थी। नीचे खुद मलिकुल आदिल खड़े इयादत करने वालों की पुरजोश बदनज़मी को संभाले हुए थे। फिर गफलत तारी हो गई। दाखला मसदूद कर दिया गया और हुक्म हुआ कसरे दमिश्क के तमाम मैदानों और बागों के सिलसिलों पर पहरा खड़ा कर दिया जाए ताकि बाबू दाखला तक किसी की रसाई न हो सके। 2 शबन की रात को कसरे दमिश्क के पहलू में बनी हुई मस्जिद में मगरिब की नमाज पढ़कर तबीब शाही उठने लगा तो आदिल ने उसका बाजू पकड़कर बिठा लिया और दिल सोजी से बोले, मुझे बताओ मेरे भाई का क्या हाल है।
اب میرے پیروں کے نیچے کی زمین ہلنے لگی ہے۔ عالم غیب تو صرف ایک ہی ذات ہے، نائب السلطنت۔ غلام اپنے علم اور تجربے کی بنا پر صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہے کہ کل تک انشاءاللہ ہوش آئے گا، اور اگر کل کا دن ٹل گیا تو عالم اسلام کے سر پر منڈلاتی ہوئی قیامت ٹل گئی۔ آج کی رات بھاری ہے نائب السلطنت۔ مدتوں کی انتہا تھکن نے جسم کی قوت سلب کر لی ہے۔ جسم دواؤں کا اثر قبول نہیں کرتا۔ دمشق میں موجود تمام بڑے طبیبوں کا غلام نے مشورہ لیا ہے۔ نسخے میں لکھتا ہوں، لیکن طبی دنیا کے وہ عالم اور عامل کرتے ہیں جن کا ثانی زمین و آسمان کے موجود نہیں ہے۔ قبہ سلطانی کے نیچے میدان میں سپہ سالار تقی الدین سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق کھڑا تھا۔ ان کو دیکھتے ہی آگے بڑھا، کفتان کے دامن کو بوسہ دیا اور تن کر کھڑا ہو گیا۔ عادل نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ سیڑھیوں کے محافظ سوار اور پیادے ہٹ گئے۔ تقی الدین نے آہستہ سے کہا، حکم کی تعمیل ہو چکی، ممالک محروسہ کے امیروں، والیوں اور سرداروں کو فرامین روانہ کیے جا چکے ہیں کہ سب اپنے اپنے مقام پر موجود رہیں، افواج آراستہ رکھیں اور حکم ثانی کا انتظار کریں۔ جو عمرہ دارالحکومت کی طرف حرکت کر چکے ہیں وہ فرمان دیکھتے ہی واپس ہو جائے اور اپنے حدود کے انتظام و انصرام پر گرفت مضبوط رکھیں۔ عادل نے صرف گردن ہلائی اور آگے بڑھنے لگے۔ تقی الدین نے پوچھا، ظرف شاہ کے کنارے مقیم افواج کے لیے کیا حکم ہے؟ عادل نے بائیں طرف ایک قدم پیچھے چلتے ہوئے تقی الدین کو گردن گھما کر دیکھا۔ کمر بندی اور انتظار۔ پھر یکلخت وہ کھڑے ہو گئے۔ مرمرین راستے کے دونوں طرف زرگنگا شمعدانوں کی ان گنت کافوری شمعوں کی سفید ٹھنڈی روشنی میں تقی الدین نے عادل کی عقابی نگاہ کو دیکھا اور آنکھیں جھکا لیں۔ عرب اور عجم، مصر اور شام، سوڈان اور بربر، کردستان اور ترکمان، سب کے نیام ایک دوسرے کی گردن کے لیے تلواریں تھڑپ رہی ہیں۔ ایک سلطان المسلمین کا اقبال انہیں بے نیام ہونے سے باز رکھے ہوئے ہے۔ ان کی علالت کی خبر ساری دنیا میں پہنچ چکی ہے۔ سالہ سال سے بیمار انسان کی سنگین علالت امکانات کے دروازے کھول دیتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں تقی الدین کہ عمرہ سازشیں کر رہے ہیں، شیوخ منصوبے تیار بنا رہے ہیں، تلواروں پر باڑھ دی جا رہی ہے اور گھوڑوں پہ زین۔ حکم دو کہ اہم مقامات کی سرحدیں بند کر دی جائیں، شاہراہوں کی نگرانی شدید کر دی جائے، قلعہ دار ایک ایک لشکری کو سمیٹ کر قلعہ بند ہو جائیں۔ چپے چپے پر جاسوس کا جال بچھا دیا جائے، قلم رو کے ایک ایک قابل توجہ آدمی کی نگرانی کی جائے، سفیروں اور یرغمالوں میں آئے ہوئے امیروں کی حرکت و عمل پر پابندی عائد کر دی جائے، امن عامہ میں خلل ڈالنے والوں کی گردن اڑا دی جائے۔ جاؤ، رات چھوٹی ہے اور بڑا کام ہے۔ ابھی وہ سیڑھیوں پر تھے کہ شہزادہ طغرل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا خبر ہے؟ مصر کا امیر البحریہ اطلاع لے کر در دولت پر حاضر ہوا ہے کہ توڑ کر باہر کیے جانے والے 200 جنگی جہازوں سے لدے ہوئے خچر آرمینیا کی سرحد کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ عادل نے تھوڑی توقف کے بعد فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا، فرمان روائے آرمینیا کو حکم پہنچاؤ کہ قافلے کے قیام کا انتظام کرے اور حکم ثانی کا انتظار کرے۔ ساری رات حکومت کے اہم دفاتر شمعوں کی مدھم روشنی میں ٹمٹماتے رہے، پرچھائیوں کی طرح انسان آتے جاتے رہے، ڈاک کے گھوڑے اور کبوتر زمین و آسمان پر ہوا کے مانند اڑتے رہے۔ برج سلطانی میں خاندانہ شاہی بیدار رہا، بے قرار رہا۔ اطباء مشورے کرتے رہے، نسخے لکھتے رہے، دوائیں بناتے رہے، علماء قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، نفلیں پڑھتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے۔ سورج کی گرن پھوٹتے ہی سلطان نے انگڑائی اور آنکھیں کھول دیں، تبسم فرمایا جس نے چہرے پر روشنی کر دی۔ بغیر کسی کا سہارا لیے تکیوں پر کوہنیاں ٹیک کر نیم دراز ہو گئے۔ تیمم کیا، قضا نماز ادا کی، سلام پھیر دیکھا تو عادل آداب شاہی ادا کر رہے تھے۔ اپنے پاس بلایا، ایک ہاتھ ان کے اور دوسرا شہزادہ عزیز کے ہاتھ میں دے دیا۔ چاروں طرف سے برستی ہوئی صحت کی مبارکباد پر مسکراتے رہے۔ دعا سے بھرا ہوا پیالہ ان کے دست مبارک میں تھا کہ فرمان بروائے کیفان نور الدین محراب کے قریب آ کر آداب شاہی ادا کرنے لگا۔ عادل کا اشارہ پا کر وہ ان کے قریب گیا اور عادل کے کان پر منہ رکھ کر سرگوشیاں کرنے لگا۔ عادل کے چہرے پر شکنیں رینگنے لگی، پھر تقی الدین میں گردن ہلا کر سلطان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سلطان نے عادل سے پوچھا، کیا ہے؟ عادل نے قدر تعامل کے بعد عرض کیا، روم کا اسقف جو اپنی کرامتوں کی وجہ سے ساری عیسائی دنیا میں مشہور ہے، بیت المقدس کی زیارت کرتا ہوا دمشق آیا ہے اور دین پناہ کی حضوری کا خواستگار ہے، لیکن قبول کر لی گئی۔ عادل اپنا جملہ مکمل کیے بغیر کھڑے ہو گئے اور عالم ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے۔
थोड़ी देर में शहजादे और उमरा इस तरह अपने अपने मर्तबे के मुताबिक खड़े हो गए कि दीलान ने दरबार की सूरत इख्तियार कर ली। खासा बरदारों का एक पैदल दस्ता अपने जरकार लिबास और चढ़ाऊ हथियार पहने आया और कमान की तरह दीलान के सामने खड़ा हो गया। ममलूक शहसवारों का एक पहरा मरमरी सीढ़ियों के दोनों तरफ दूर तक फैल गया। बाबुद्दाखिला शाही तक संगीन रास्ते पर दोनों तरफ सूडान के नेजाबाज कायम हो गए। फिर तुर्कमानों के जुलूस में पादरियों का एक ग्रूह तुलू हुआ। सबके आगे आगे अस्कफ था। वो सेहा नफीस रेशम के टखनों तक लंबे जुब्बे पर दबागत हुए सुर्ख चमड़े की पापोश पहने था। गले में भारी चोबी सलीब तौक की मानिंद पड़ी थी। बर्फ की तरह सफेद रेशमी दाढ़ी दमिश्क की खुशगवार ठंडी हवा से लजर रही थी। दोनों शानों पर घुंघरियाली काकलें थीं। सफेद अबरुओं, सफेद पलकों और नीम आंखों पर रहबानियत का तकद्दुस बरस रहा था। खासा बरदारों की सबसे गुजरते ही अस्कफ की निगाह सुल्तान पर पड़ी। उसने जवानों की सी फुर्ती से सीने पर सलीब बनाई और बूढ़े घुटनों पर खड़ा हो गया। मेहराब में खड़े हुए आदिल ने आगे बढ़ने का इशारा किया। हर चीज का जायजा लेती हुई होशियार आंखें अब सिर्फ हमारा सुल्तान पर मरकूज थे। वो चांदी के 2 गज ऊंचे ऐवान पर तकियों के सहारे नीम दराज थे। निस्फ जिस्म पर जर्द अलवान पड़ा था। जर्द मखमल की सदरी से कफ्तान का गलू बंद नजर आ रहा था। सदरी की चुस्त आस्तीनों के तंग कफ मुश्की मखमल के थे। पतली नोकदार दाढ़ी के दोनों किनारे स्याह थे। तुरबोश के नीचे काले गंजान अबरूहों के साए में नीम खुफ्ता सी बीमार आंखों में शहनशाही का जलाल चमक रहा था। जर्दी माइल गंदुमी सते हुए चेहरे पर पसीने के कतरे नजर आ रहे थे। मुसव्विरों के से खूबसूरत हाथ पहलुओं में पड़े थे। सरहाने खड़े हुए 2 हसीन बादशाहों का लिबास पहने मोरचल हला रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आया और ईमान के सामने खड़ा हो गया। फिर गर्दन को खम देकर 3 बार ताजीम दी। आदिल ने मुरस्सा कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। उसने घुटनों तक सर झुकाकर सलाम किया। सारा दरबार खड़ा था। वो भी कुर्सी के तकिए का सहारा लेकर खड़ा हो गया। तकरीर और ताल्लुम के आदी उसकुफ ने बोलना शुरू किया। नाइटों के नाइट और बादशाहों के बादशाह को सलाम करता हूँ और दिली शुक्रगुजारी का इजहार करता हूँ कि मिजाजे शाही की नासाजी के बावजूद कदम बोसी का शर्फ अता हुआ। शहनशाह, एक मुद्दत से आरजू थी कि दुनिया के सबसे बड़े शहनशाह का न्याज हासिल करूं, जिसके हाथों में मसीह ने बैतों क़द्स की हिफाजत सौंप दी। मगरिब में महलों से झोंपड़ों तक जिसके नाम के गीत गाए जाते हैं और फसाने सुनाए जाते हैं। बूढ़ा उसकुफ थक गया था। सुस्ताने के लिए रुका और फिर बोला, दमिश्क पहुंचकर इल्म हुआ कि सुल्तान आजम अलील हैं और बड़े बड़े अमीर बारियाबी की सादत से महरूम हैं। मैंने इबादत की, दुआ मांगी, सुल्तान आजम की सेहत और अपनी बारियाबी की दुआ मांगी। खुदा का शुक्र है कि मैं दीदार से शर्फियाब हुआ। यानी एक दुआ पूरी हुई और उम्मीद है कि दूसरी भी कबूल हो गई। वो आसमान की तरफ दोनों बूढ़े लांबे हाथ उठाए दुआ मांगता रहा। अगर सुल्तान आजम समात फरमा सकें तो एक गुजारिश कोशगुजार करूं। गुलाम राहिब है, दुनिया की राहतों और कुल्फतों से बेनियाज, लेकिन जब भी अल-कुद्स की ज़ियारत को आया हूं, यूरोप के किसी न किसी फरमान नवा के लिए एक दुआ मांगी है और महद मसीह की बरकत के सदक़े में पूरी हुई है। इस बार सफ़र की नीयत करते वक्त अहद किया था कि यरूशलेम के रहीम फातेह के हुजूर में हाज़री दूंगा, उसकी एक आरज़ू मालूम करने की इस्तदा करूंगा और कबूलियत के लिए मसीह से रो रो कर दुआ मांगूंगा। इसलिए दरख्वास्त है कि सुल्तान आजम ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाएं। उसकुफ के इस जुमले ने पेशानी मुबारक पर शिकन डाल दी। अबरू तन गए। दोनों कोहनियां तकियों पर टेक कर बैठ गए। बड़े बड़े काहिर बादशाहों की फौजों में हलचल डाल देने वाली आवाज बुलंद हुई। बूढ़े और मुसाफिर अस्कफ, हमारे दिल ने ऐसी ख्वाहिश को बाजियाब नहीं किया जिसकी तकमील हमारे हुजूर से दस्त बस्ता ना गुजरी हो। दुनिया ने कोई नेमत अभी तक ऐसी पैदा नहीं की जो हमारे गुलामों की दस्तरस से दूर रह सकी हो। ताहम इन बीमार आंखों ने एक ख्वाब ऐसा भी देखा था जिसकी ताबीर नसीब ना हो सकी। इसलिए इसकी ताबीर क़ज़ा व क़दर के हुक्म की मोहताज है और हमारा ईमान है कि क़ज़ा व क़दर के मामलात खाकी इंसानों के कोताह हाथों से परे हैं। सुल्तान थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। सारे दरबार पर सन्नाटा छा गया। सांसों की आवाजें उसकी सकूत में मखल न हो सकती थी। फिर उसी तरह खला में घूरते हुए
فرمایا کہ ہم نے چاہا تھا کہ مسجد اقصیٰ کے کلس ہمارے سامنے ہوں، محمدی پرچم کا مقدس سایہ ہمارا سر پر ہو، ہمارا کفن ہمارے خون سے گلکار ہو چکا ہو، ہم گھوڑے پر سوار سرخ تلوار علم کیے جنگ سلطانی لڑ رہے ہوں، اس گھڑی جس گھڑی ہمارا سپہ سالار ہمیں فتح کی بشارت دے، ہم جان آفرین کو سپرد کر دیں اور شہید کہلائیں۔ ہوا یہ کہ بیمار کسانوں اور نامراد چرواہوں کی طرح اس بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑتے ہوئے ہم موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ معلوم نہیں ہوا کہ وہ کون سی خطا سرزد ہوئی جس کی پاداش میں اس شخص کو یہ موت دی گئی جو 26 برس تک دشمن کی صفوں میں شہادت ڈھونڈتا پھرا ہو۔ سلطان نے گردن گھمائی، اسقف کی مروب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شاہانہ جلال سے فرمایا، جس یورپ کے 5 بادشاہوں کی لاکھوں تلواریں ہماری ایک خواہش کو پورا نہ کر سکیں، اس کے ایک بوڑھے پادری سے ہم کیا مانگے؟ پھر کہا، نائب السلطنت، دین پناہ، جب تک یہ سلطنت یوبی کی حدود میں ہمارے مہمان ہیں۔ اور سلطان نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھا دیا۔ روب سلطانی سے بدحواس اسقف نے دونوں ہاتھوں سے دست مبارکہ کو تھام لیا، گھٹنوں پر گر کر بوسہ دیا، آنکھیں ملی اور لرستی ٹانگوں پر کھڑے ہو کر الٹے قدموں واپس ہونے لگا۔ پھر تنفس کا حجم بڑھ گیا، وہ تکان سے نڈھال ہونے لگا۔ عادل دیوان شاہی کی طرف جھکے تو حکم ملا کہ تلوار ہمارے پہلو میں رکھ دو اور تخلیہ کرو۔ شہزادہ عزیز نے دونوں ہاتھوں سے تلوار اٹھا کر داہنے پہلو میں رکھ دی اور الٹے پہروں واپس چلے گئے۔ چشم زردن میں تمام دروں کے مخملین پردے کھول گئے۔ مشرقی محراب کا پردہ جب کھلنے لگا تو دست مبارک نے منع کر دیا۔ خلوت شاہی مکمل ہو گئی۔ صدری کی جیب سے انہوں نے ایلینور کا خط نکالا، گردن کا زاویہ بدل کر ہلکے زرد رنگ کے کاغذ کو اپنی آنکھوں کے سامنے کر لیا۔ کمزور جسم کی آنکھوں پر میلی روشنی میں زور پڑا تو دھند لگ گئیں، الفاظ کی صورتیں بگڑ گئیں۔ انہوں نے ایک ایک لفظ اپنی یادداشت کے سہارے پڑھ لیا۔ کانپتے ہاتھوں سے خط کو اس کے طول سے موڑا، تلوار کو بے نیام کیا، کاغذ کی لمبی پتلی سی چٹ کو نیام میں ڈال کر تلوار نیام کر دی۔ تالی بجانے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سامنے کا پردہ ہٹا کر ایلینور آ گئی، سر سے پاؤں تک بے شکن سیاہ لباس میں ملبوس، ننگے سر اور ننگے پاؤں آئی اور صلیب بنا کر گھٹنوں پر گر گئی۔ سرخ بال سفید ہو گئے تھے، نیلی آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں، چہرہ جھریوں سے لبریز تھا، ہاتھوں کی سفید کھال نے گوشت کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ ارسوف کی پہاڑیوں پر مقیم اپنی بارگاہ میں بیٹھے صلیبیوں کی پیش قدمی کا انتظار کر رہے تھے۔ قاضی بہار الدین قراؤنوں کے پرچے پڑھ رہے تھے اور وہ سامنے رکھے ہوئے نقشے پر دشمن کی نقل و حرکت کے نشانات دیکھ رہے تھے کہ سر پردہ خاص کے دروازے پر کوئی بوڑھی عورت رونے لگی، فریادیں کرنے لگی، جسے پہرے دار اسے روک رہے ہوں اور وہ حضوری کے لیے گڑگڑا رہی ہو۔ وہ مظلوم بڑھیا کی آہ و فریاد سے بے قرار ہو گئے۔ حکم دیا کہ عورت کو سامنے لایا جائے۔ وہ میلا کچیلا سیاہ لباس پہنے تھی، زخمی پیروں سے خون رس رہا تھا، شانوں پر میلے کچیلے سن کی موٹی پتلی رسیوں کی طرح بال جھول رہے تھے، شدید سردی میں خشک پتے کی طرح کانپ رہی تھی اور آنسوؤں نے اس کے چہرے کو بھگو دیا تھا۔ وہ آتے ہی آتے تخت کے سامنے اوندھی گر پڑی اور رو رو کر رحم کی بھیک مانگنے لگی۔ اشارہ کیا، اسے موٹے کمبلوں میں لپیٹ دیا گیا، انگیٹھیوں کے سامنے بٹھایا گیا، اونٹ کے گرم گرم دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ جب اس کے ہوش بجا ہوئے تو اس نے عرض کیا، شہنشاہ، میرا ایک بیٹا ہے، 10 ہے نہ 5، 2 ہے نہ 4۔ وہ لوگوں کے بہلانے پھسلانے میں آ کر فوج میں بھرتی ہو گیا اور طبقہ الداویہ کے سواروں کے ساتھ گرفتار ہو گیا۔ کہاں گرفتار ہوا؟ اکے پر شہنشاہ، اکے پر گرفتار ہو گیا۔ 2 برس ہو رہے ہیں کہ چپا چپیا کو ناکا کونا ڈھونڈتی پھر رہی ہوں۔ القدس پر رحمت کے بادل کی طرح برسنے والے مجھ بڑھیا پر رحم کر، عمر بھر دعائیں دوں گی۔ اس سے زیادہ وہ نہ سن سکا۔ ناقابل بیان سردی میں اٹھ کھڑا ہوا، فرغل پر تریوش پہن لیا اور تلوار اٹھا لی اور بڑھیا کو اپنے ساتھ لے کر خیمے سے نکلا۔ عمرہ کو طلب کیا، قیدیوں کو حاضر کیے جانے کا حکم دیا اور بڑھیا اپنے بیٹے کو دیکھتے ہی چیخ مار کر اس سے لپٹ گئی۔ دونوں کو ایک دن مہمان رکھ کر جوڑے اور گھوڑے عطا کیے، سفر خرچ دے کر رخصت کیا۔ ہم کو اگر کسی عورت پر رشک آیا ہے تو یہی بڑھیا ہے، بادشاہوں کے بادشاہ۔ ایلینور نے تصور سے نکل کر ان کے کان میں جھک کر عرض کیا۔ انہوں نے تکلیف سے کراہ کر کروٹ لی۔ ایلینور آہستہ آہستہ آئی اور دیوان کے سامنے 2 زانوں بیٹھ گئی۔
यूसुफ, अगर तुम्हारी तकदीर ने यावरी ना की होती और बादशाहों की बादशाही नसीब ना हुई होती और तुम सलीबियों के हाथ गुलाम हो गए होते और रस्सियों में बंधे जानवरों की तरह हमारे हुजूर में पेश किए गए होते, तो मसीह की कसम हम तुम्हारा ऐसा इस्तकबाल करते कि सदियों तक तुम्हारा ख़ानदान तुम्हारे नाम पर फ़ख्र करता और हमारी सखावत के अफसाने सुनाता था। हम बीमार हैं एलिनोर। बीमार? तुम तो कहा करते थे कि जब हम जहाद के लिए घोड़े पर सवार होते हैं तो मर्ज गर्दन से उतरकर हमारी रकाब थाम लेता है। अगर तुम कहो तो रिचर्ड की राही के लिए सफारत भेज दें, लेकिन एलिनोर, हमें यकीन है कि हमारी सफारत से पहले हमारी बीमारी की खबर पहुंच जाएगी और शिकस्त खोर्दा बादशाह सफीरों को गिरफ्तार कर लेगा और इस्लामियों की हैबत को नुकसान पहुंचेगा। इस्लामियों की जिल्लत के झूठे वहम पर एक मजबूर बूढ़ी औरत के जवान कैद बेटे की जान और आबरू को कुर्बान कर देने वाले नाइट एलिनोर का सलाम ले। सुल्तान ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आवाज को याराना नहा। दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया, आंखें बंद कर लीं और हुजूरी कल्ब से दुआ मांगी, परवरदिगार, मुझे इस आजमाइश से निजात दे, इस मुतहान में सुर्ख रू कर। फिर उन्हें महसूस हुआ दिमाग की रगें फट जाएंगी। उन्होंने अपने पूरे जिस्म की कुव्वत समेट कर ताली बजाई और निढाल होकर हाथ छोड़ दिए और आंखें बंद कर लीं। हुक्म का इंतजार करते हुए कदमों की आवाज से दालान भर गया। ढलते हुए झाड़ों की कुंदनी धूप संगे स्याह के चमकीले चबूतरे पर बिछी थी, जैसे कफ्तानों के जर्द अतलस के बहुत से थान खोलकर फैला दिए गए हों। आखिर मौसम के दमिश्की गुलाबों की तेज खुशबू ठंडी खुशगवार हवा के पहलू से लगी उब्बाए शाही के सामने लरज रही थी। मशरिक से शुमाल तक फैला हुआ स्पेनी महराबों का जंगल शिकारी चीतों, उकाबों, बाजों, शकारों और कबूतरों से भरा हुआ था। खिदमत गुजारों का अंबूह सब्ज इमामे और कबाए पहने अमीर शिकार के हुक्म का मुंतजिर खड़ा था। इमारत के तमाम मुतल्ला दर्रों के पर्दे बंधे हुए थे। आलिमों के टखनों तक लंबी कबाएं और भारी इमामों के कमर तक लटकते शमले, मखमली पापोश और अमीरों के जरकार किफ्तानों, जरकार तरपोशों का मदार, चूमी मोजे, मोरसा न्यामों और कस्बों के आबदार हथियार सब ख्वाबों की तरह खामोशी से आ रहे थे और सीढ़ियों से चबूतरे की गोशों तक और महराबों के कल्ब तक अपने अपने मनसब और मकाम के मुताबिक अस्तादा होते जाते थे। अफसुर्दा चेहरों, मगमूम आंखों, लरसते हाथ पैरों पर एक गम था जो मुसल्लत था। जब कहीं दिल रखने की जगह रही और हवास पर काबू हुआ तो गुलामों का सहारा ले सुल्तानुल मुस्लिमीन उठे और तकियों से पुश्त लगाई। शहजादा अजीज ने अपने फराग सीने से सरे मुबारका को सहारा दिया, दरबार पर निगाह की। अपने हाथों से पैदा की हुई अजीमुशान सल्तनत के अपनी रकाब में तरतीब किए हुए जलीलुशान अमीरों वजीरों पर नजर पड़ी तो कैसी कैसी यादें ताज़ा हो गईं। कैसे कैसे खूनी मार के फतह की मुबारक यादें सामने गुजर गए। कैसी कैसी यादगार और तारीख साज फुतूहात सलाम करने को बाजियाब हुई। आस्तीन पर लगे हुए जर्द रुमाल से आंखें खुश की। अजली गर्दन फराजों और पुश्तैनी मगरूर बादशाहों को सरनुगू कर डालने वाली आवाज में फरमाया, लोगो, हमने तुमको तलब किया इस ऐलान के लिए कि हमारे तुम पर जो हकूक हैं वो माफ हुए। अगर हम पर तुम्हारे कुछ हकूक बाकी हैं तो तस्लीम करते हैं और वसीयत करते हैं कि हमारे भाई और बेटे और भतीजे इस शफकत और मोहब्बत के सिले में जो हमने हमेशा उन पर रवा रखी है, हमारे सामने या हमारे बाद तुमको अदा कर दें। हमने खुदा की रहमत से एक सल्तनत पैदा की और सुल्तान कहलाए, लेकिन दर हकीकत हम खुदा की अमानत और तुम्हारी खिदमत के अमीन थे। आज ये अमानत अपने परवरदिगार को सौंपते हैं और वसीयत करते हैं कि हम अपनी तरफ से किसी को इस सल्तनत का वारिस करार नहीं देते। जिस पर तुम्हें इत्तफाक हो तुम बादशाह बना लो। दीन पनाह। एक दर्दनाक आवाज बुलंद हुई। मलिकुल आदिल ने अपनी कमर से वो तलवार खोली जो सुल्तान आज़म ने अपने हाथों से हतीन की फतह पर बांधी थी और सुल्तान के कदमों में रख दी, और गुलामों की तरह हाथ बांध कर खड़े हुए और रोती आवाज में बोले, अब मैं सल्तनत अयूबी का नायब सल्तनत नहीं हूँ सुल्तान, उस अजीमुल मर्तबत इंसान का भाई हूँ जिसने मुझे बाप की तरह पाला और बेटों की तरह बरता है। दीन पनाह। खुदा ना करे कि हमारी ज़िंदगी में हम पर क़यामत सुग़रा बरपा हो, लेकिन अगर लौहे महफूज में यही मरकूम है तो जिस तरह आदिल ने आपकी रिकाब में तलवार हिलाने को ज़िंदगी की सबसे बड़ी सआदत जाना है, आपके अलम की शौकत के लिए सर हथेली पर रख कर दादे शुजाअत दी है, इसी तरह रब्बुल आलमीन की कसम
इसी तरह आपके जानशीन के लिए, शहजादा अजीज के लिए तलवार हिलाता रहेगा। उनकी एक जुम्बश अबरू पर अपनी औलाद की जान निछावर कर देगा। और सुल्तान के हाथ पर अपनी नम आंखें रख दी। सुल्तान का दस्ते शफकत उनके तरबूश पर लरसता रहा। आंखों से 2 आंसू ढलक कर नूरानी धाड़ी में खो गए। हाजरीन जमीन पर आंखें गाड़े तस्वीरों की मानंद खड़े थे। हाथ हिलाकर काज़ीउल क़ुज़ात को अपने करीब बुलाया। कदमों में रखी हुई तलवार की तरफ इशारा करके हुक्म दिया, ये दमिश्क की हिफाजत है और सिर्फ आदिल को ज़ेब देती है। काज़ीउल क़ुज़ात ने दोनों हाथों से तलवार उठाई, मलिकुल आदिल से खड़े होने की गुजारिश की और तलवार कमरबंदी, मुफ्ती आज़म या अंगुश्तरी निशान हुकूमत है जिसका खुतबा पढ़ा जाए उसी के हाथ में पहना दी जाए। सुल्तान ने अपने हाथ जबले नूर से आरास्ता अंगूठी उतार दी। काज़ीउल क़ुज़ात ने दोनों हथेलियों की कश्ती में संभाल लिया और हाथों को सीने तक बुलंद किए खड़े रहे। दमिश्क का खजाना शायद दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है जो हम पर हराम है। हमारी ज़ाती मलकियत में 7 दरहम है जो हमारे सफ़र आखिरत में काम आएंगे। सुल्तानुल मुस्लिमीन, हत्तीन की लड़ाई में हमने जो कफन पहना था, जिसे पहनकर हम बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए थे, उसी खून आलूदा कफन में हमको दफन किया जाए कि उसकी बरकत से कब्र की मुसीबत आसान हो जाएगी। हमारी तलवार हमारी कब्र में रख दी जाए। क़यामत के दिन जब खुदा मुझसे हिसाब मांगेगा तो जवाब दूंगा कि ऐ परवरदिगार, लोहे के इस टुकड़े के सदके में जिसने बैतुल मुक़द्दस फतह किया और तेरे महबूब की उम्मत के हवाले कर दिया, मेरे बेहिसाब गुनाहों से दरगुजर कर। यकीन है कि इस वसीले से बख्शिश नसीब हो जाएगी। वसीयत है कि जनाजे के साथ कोई बैन नहीं करेगा, किसी खतीब को तकरीर की इजाज़त नहीं दी जाएगी, किसी शायर को मरसिया पढ़ने का हुक्म ना होगा। कब्र नीची और कच्ची बनाई जाए। होंठ कांप कर रह गए और तकियों पर सर डाल दिया। तबीब खास ने लपक कर नफ्स पर उंगलियां रख दी, आंखें खोलीं और साफ अल्फाज में फरमाया, दवा नहीं, दुआ करो, कलाम इलाही सुनाओ। बनु उमैया और बनु अब्बास के जाहो जलाल से चश्मक करने वाले शहनशाह का आखिरी दरबार खड़ा था। बाबे दाखला पर सारा दमिश्क मुहाफ़िज़े इस्लाम का दीदार हासिल करने के लिए ठाठे मार रहा था और सैकड़ों तुर्कमानों के नेज़ों की नोक पर टिका हुआ था।